So welcome dear students. Let us start a new chapter, numerical methods. So in this chapter we are going to see the successive solution of the problems, particularly which problems which we are going to solve successively. What successively? Where we are going to solve the simultaneous linear equations, not differential, linear equations, algebraic and transcendental equations, graphical methods, etc. etc. Numerically, how we are going to solve the things. Numerically, how we are going to obtain the solution of the problem. There are two types of problems: algebraic and transcendental equations, then solution of linear simultaneous equations, and then first order differential equation जो होगा that we are going to solve. In the solution of algebraic and transcendental equation, we are going to see Newton-Raphson and false position method. Linear equations में we are going to see Gauss-Seidel method, relaxation method, and Gauss elimination method. Kraut's method we will put in a different manner. And solutions of first order differential equations में what we are going to see Picard's method and Taylor series methods. There are two more methods there: Euler's method and modified Euler's method, and particularly Runge-Kutta methods. So what is algebraic equation, algebraic and transcendental equation? You know algebraic equation, the equation which consists of, just for example, ax square plus bx plus c. So how we are going to solve ax square plus bx plus c? This is an algebraic equation. We know how to find out the roots, but say where the roots are not easily possible, just for that instant, how we are going to solve that equation? That equation can be solved in a different manner. So what that different manner? We have to assume the roots and we have to solve. We have to go through the roots. Which root will be better? Which root will be more better? That we'll have to look into. So that equation is called as algebraic equation, and that we are going to see. Transcendental equation, the equation which consists of sine, cos, log, or two types of functions are called as ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन. दैट मीन्स उसमें x भी होगा, साइन भी होगा, कॉस भी होगा, लॉग भी होगा, ऐसे जो इक्वेशंस होंगे उसको ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस कहेंगे. ठीक है. अब मैं पहले सीधे सीधे न्यूमेरिकल मेथड, जो न्यूटन रैप्सन मेथड है उसके पास चला जाता हूं. सो सी व्हाट वी आर गोइंग टू से. सो न्यूटन्स मेथड, न्यूटन जो मेथड है तो वो हम देखेंगे वो कहां पर यूज होगी. सी केयरफुली, न्यूटन्स मेथड ये मेथड ऐसी है वेयर वी आर गोइंग टू गेट द मोर करेक्ट रूट, approximate root. So see how we are going to go into this image. Let us suppose that x0 be the initial approximation और वो होगा अपना root. ठीक है. So x0 will be the root. That means f of x equal to 0. That means x1 equal to x0. That means approximate root of the equation of f of x equal to 0. ये इक्वेशन है जिसका x0 क्या है, रूट है. Now let x1 x0 plus h be the exact root. ऐसा सपोज करके हम चलते हैं. तो वो जब हम टेलर सीरीज इक्वेशन में डालेंगे तो उसका एक अप्रोक्सीमेशन बनेगा, वो होगा ये वैल्यू ऑफ h. कैसे बता देता हूं. Expanding x0 plus h by Taylor series. So what Taylor series gives me? F of x0 plus h into f dash of x0 plus h square by 2 factorial f double dash of x0 plus dot 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 dot. But since h is very 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 small, यानी अब ये हो क्या रहा है, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं इसमें ये क्या है, so that you could understand what this exactly h mean to be. ध्यान से सुनना. कभी आप कोई किराना दुकान में गए हो रैंडमली फॉर बाइंग अ शुगर और एनीथिंग एल्स, तो जरा ध्यान से देखो वो वेइंग मशीन में जो वो शुगर वगैरह वो डालता है, तो व्हाट ही यूज्ड टू डू, तो पहला एक यक्स अमाउंट लेके आता है और वो यक्स अमाउंट लेके आने के बाद वो ग्रेजुअली उसमें शुगर जो पॉट है उस पॉट में वो डालने लगता है, सो दैट जितनी भी आपकी क्वांटिटी हो वो क्वांटिटी एग्जैक्ट मैच हो जाए. ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं.
वो पहले ही वो जो पॉकेट है, जिस पैकेट में वो आपको शुगर बेचने वाला है, उसमें अंदाजन समझो आप 5 किलो शुगर लेने के लिए गए हैं, तो वो 5 केजी की शुगर लेके आएगा अंदाजन, और साथ में एक छोटा सा पॉट लेके आएगा। उस छोटे से पॉट में वो ये ट्राई करेगा कि अगर डालना है तो डाले, अगर वो ज्यादा हो गई है तो कम करना पड़े तो वो कम कर सके। और वो जो छोटी पॉट में से डालने वाली चीज है वो बहुत ही धीरे 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 वो उसमें पोर करेगा। वाई फॉर? क्योंकि वो अगर जल्दी डालेगा तो वो ज्यादा वजन आपको मिल जाएगा। सो ऑन द सेम ग्राउंड वो धीरे धीरे धीरे, यानी एच विल बी वेरी वेरी स्मॉल। वैसे ही रूट, नया रूट मिलने के लिए हम धीरे 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 उसकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे, स्लोली स्लोली इंक्रीज करेंगे। अब वो स्लोली स्लोली मतलब क्या? दैट इज नथिंग बट योर एच, स्लो स्लो। दैट मीन्स एच इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर एच वेरी वेरी स्मॉल तो एच स्क्वेयर, एच क्यूब, एच का पावर 4, ये डॉट 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 वो क्या होगा? जस्ट से एच अगर 0.1 है तो एच स्क्वेयर क्या होगा? 0.01। समझे ना मैं क्या बोल रहा हूं? 0.01 क्यूब क्या होगा? 0.001 एंड सो ऑन। यानी धीरे 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 ये इंक्रीज होता जाएगा। यानी डेसिमल पॉइंट, यानी बेसिकल वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज में चली जाएगी, ना कि किधर? इंक्रीज में। सो व्हाट इट मीन्स, इफ h is very very small, then the value of, mind my words, then the value of h square, h cube, h का power 4 will be very 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 small, so that we can neglect the higher powers of h. That means this we can neglect. So बचेगा क्या? f of x0, h, f dash of x0, मैं क्लियर कर रहा हूं ये। So h will be f of x0 divided by f dash of x0 minus. So the closer approximation is given as x1 equal to x0 minus the given formula. So on the similar basis, similar ground, जो मैंने x1 के लिए ट्राई किया वही मैं x2 के लिए ट्राई करूंगा विद द हेल्प ऑफ x1, वही मैं x3 के लिए ट्राई करूंगा विद द हेल्प ऑफ x2. So the formula will be xn plus 1 equal to xn minus f of xn divided by f dash of xn. See carefully, xn plus 1 equal to xn minus f of xn divided by f dash of xn. So what is this? This is called as Newton-Raphson formula, iteration formula. See carefully, इसी के बेसिस पे, the graph is shown here, इसी के बेसिस पे मुझे प्रॉब्लम्स को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, आगे बढ़ना है। सो पहला प्रॉब्लम, फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ x का पावर 4 माइनस x इक्वल टू 10, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग न्यूटन-रैप्सन मेथड। x का पावर 4 माइनस x इक्वल टू 10। सो फर्स्ट ऑफ ऑल f of x इक्वल टू x का पावर 4 माइनस x माइनस 10 बाय न्यूटन-रैप्सन फॉर्मूला, xn plus 1 इक्वल टू xn माइनस f of xn डिवाइडेड बाय f dash of xn। अब ये सब चीज करने के लिए मुझे सबसे पहले कोई ना कोई तो रूट चाहिए, समझे ना? यानी आइडेंटिफाई करने के लिए कोई ना कोई तो रूट चाहिए। अब ये आइडेंटिफाई करना है मतलब क्या है? छोटा सा और एक एग्जांपल आपके लिए ध्यान से देखूं कि जस्ट इमेजिन ये इतनी बड़ी प्लेट है, उस प्लेट में आपकी माँ चावल ठीक कर रही है। समझा करो मेरी बात को। चावल ठीक करना मतलब चावल को साफ करना, ठीक है? या गेहूं को साफ करना, एग्जाम्पल के लिए। वो गेहूं को साफ करते करते आपको, आपकी माँ को यहाँ पर एक कीड़ा दिखाई देता है, या कोई इंस्टेंट दिखाई देती है, या कुछ ऐसी चीज दिखाई देती है जो प्रॉब्लम में है। तो आपकी माँ क्या करती है? इस एरिया को मार्क करती है और पूरा गेहूं इधर इधर ढकेल देती है। समझ में आ रहा है? फिर अब इस एरिया में वो देखेगी कि वो कीड़ा या कोई चीज कहां पर है। ऑन द सेम ग्राउंड पहले हम वो इक्वेशन कहाँ है, उसका सॉल्यूशन कहाँ है, ये फाइंड आउट करेंगे और उसमें से एक रूट लेके आगे बढ़ेंगे। सी कैसे? अब ये बात ध्यान से देखना। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये तो मेरा फॉर्मूला हुआ। पुट x इक्वल टू 0 इन द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन है उसमें x इक्वल टू 0 पुट किया, मिला -10। x इक्वल टू 1 पुट किया, अगेन मिला -10।
x इक्वल टू 2 पिट किया, अब मिला +4। अब ध्यान से देखना क्या हुआ। जस्ट इमेजिन ये नंबर लाइन है आपकी, ये है 0, ये है 1 2 3 4 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, जरा ध्यान से देखना बच्चों, थोड़ा सा ही इसको इरेज करना पड़ेगा, बस चलो ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। 0 के लिए वैल्यू आई -10, 1 के लिए वैल्यू आई -10, दोनों के लिए वैल्यू -10 इस इक्वेशन की। अब x इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू आई 4, यानी इसके लिए आई -10, इसके लिए आई 4, यानी व्हाट इट मीन्स, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कब होगा, रूट कब मिलेगा, जब LHS इक्वल टू RHS होगा, यानी रूट क्या मिलेगा, 0। अब 0 एक तो लेफ्ट साइड में होगा, यानी 0 आया, इसका मतलब 0 किसके बीच में आना चाहिए, 0 माइनस और प्लस के बीच में आना चाहिए, यानी सी जब मैं x इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं तो -10 वैल्यू मिल रही है, जब x इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूं तो +4 वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये कि 0 इन दोनों के बीच में है, यानी मैं कौन सा 0 बोल रहा हूँ बच्चों, नंबर लाइन वाला 0 नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये आउटपुट वाला 0 बोल रहा हूँ। जब मैं रूट्स वैल्यू रखूंगा तो RHS क्या मिले, 0 मिले। ये 0 इन दोनों के बीच में है, इसका मतलब मेरा रूट भी 1 एंड 2 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। अंडरस्टूड, मेरा रूट भी 1 एंड 2 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। सो व्हाट इज द $1,000,000 क्वेश्चन, the $1,000,000 question is, we have to identify first of all where we are going to get the negative value and where we are going to get the positive value by substituting certain numbers, say for 0 1 2 etc etc etc, and then we can recommend that the root lies between that negative and that positive. How we are going to select that negative and positive, very easy, select the last negative and first positive. Understood, क्लियर हुआ, एंड वाइस वर्सा, अगर पॉजिटिव मिलता रहे तो सबसे जो छोटा वाला पॉजिटिव है वो कंसीडर करो, और जो निगेटिव मिलता रहे तो सबसे बड़ा निगेटिव जो है वो कंसीडर करो। समझे, चलो अब इतना हो गया हो तो क्या होगा, रूट f of x lies between f of x, root of f of x equal to 0 lies between 1 and 2. That's what we are dealing, 1 and 2. Just consider that root is x0 equal to 2. So we have assumed that the initial root to be x equal to 2. Therefore, the value of x equal to 2, f of x will be 4, that we are very much well known with it. So immediately we are going to calculate f dash. So what the f dash is, 4x cube minus 1. Now see carefully, here the game starts. The formula is xn plus 1 equal to xn f of xn f dash of xn. We are substituting n equal to 0. Understood, n equal to 0. That means, see carefully, n equal to 0 means x0 x0 x0. So the formula will be f of x0 plus 1 equal to f x0 minus f of x0 f dash of x. So x0 equal to 2, that we are very well known. F of x0, that means f of 2, and f dash of x0, that means f dash of 2. Understood? Put to here, put to here. Here the value is 4 and here the value will be, see carefully, I am clearing it all. So the value will be 2 minus 2 ka power 4 minus 2 minus 10, 4 into 2 cube minus 1. So the answer is 2 minus 4 by 31. That means 1.871. Understood? 1.871. Now this is the value of x1. Once x1 is there, immediately calculate f of x1 and f dash of x1. Understood? You can calculate wherever you would like to want. You can calculate in iteration 2 also. So we will go for iteration 2. Iteration 2. Now
Previously n equal to 1 was there. Now we have incremented n by 1 and that is n equal to n1. So the value of x1 will be 1.1871. So x2 will be, you see here formula, x2 will be x1 minus f of x1 f dash of x1. Substitute the value of f of x1 and substitute the value of f of 1.871 f dash of 1.871. Putting the value, what we are getting here, 1.871 minus 0.3835, 25.199. So the final answer would be 1.856. See carefully, 871,856. We have started with 2,871, reducing 856, again reducing. Understood. Now we are consider x2 to be 1.856, increasing it once again, n equal to 2, n equal to 0 था, n equal to 1 हुआ, n equal to 2. x2 हम जानते हैं, so x3 equal to x2 minus f of x2 divided by f dash of x2. Substituting the value, we get 1.87856 minus 0.010 divided by 24.574. Answer will be 1.856. Since x2 equal to x3, this is the correct root. Understood? This is the correct root. Now see carefully. Here it has been clearly asked, see in the problem, correct up to 3 decimal places. See, correct up to 3 decimal places. If we have gone for correct up to 4 decimal places, the answer might be a different one. Clear हुआ इतना? The answer might be a different one. So think carefully. जब भी हम कहाँ रुकेंगे? When two roots are going to occur at the same time. ठीक? We are going to stop there. ठीक? Next problem. Find the roots of. अब ये प्रॉब्लम सेम है, सेम स्ट्रक्चर वाला है, तो ये आप प्रैक्टिस के लिए लीजिए. अंडरस्टूड? ठीक है, ये आप प्रैक्टिस के लिए लीजिए, सेम स्ट्रक्चर वाला है, सिर्फ फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज हो गया. मैं दूसरा देखता हूँ. ठीक है, कौन सा? ये आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए. अंडरस्टूड? ठीक. हाँ, ये भी अब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस के लिए लोगे, क्योंकि ये सेम इक्वेशन वाला है. अंडरस्टूड? सेम इक्वेशन कहने का मेरा मतलब है कि वो एग्जैक्ट उसी इक्वेशंस के बेसिस पर है. ठीक है ना? मैं ट्राई ये करूंगा कि थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम कहीं हम आइडेंटिफाई. यस, अब ये प्रॉब्लम आ गया, इसको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, अलग आया प्रॉब्लम. अब तक जो आए थे वो किसके बेसिस पे थे, सेम टाइप के थे प्रॉब्लम, तो ये अलग प्रॉब्लम है. ठीक है, फाइंड यूजिंग द न्यूटन इटरेशन मेथड, फाइंड द रियल रूट ऑफ x log to the base 10x equal to 1.2, correct up to 5 decimal places. So x log to the base 10x equal to 1.2. अब इसको कैसे डील करें, इसको कैसे देखें, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कैसा इसको देखेंगे. ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं. जब भी ऐसा log to the base 10 होता है, तो log to the base 10 को हम कैसे उसमें कन्वर्ट करेंगे, क्या लॉजिक यूज करेंगे, किस वे से उसको आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, मैं चीजें एक्सप्लेन करूंगा आपको. अंडरस्टूड? ठीक है, ध्यान से देखना. सो एफ ऑफ एक्स तो हमने लिख लिया. व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? x log to the base 10x minus 1.2. ठीक है, अब इमीडिएटली उसका f dash of x लेना है, तो व्हाट इज f dash of x? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डू, हाँ, तो x शुड बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट. log to the base 10x का डेरिवेटिव ले लें. तो log to the base 10x का डेरिवेटिव लेने के बाद अगर ये log to the base e का डेरिवेटिव होता तो मेथड अलग, log to the base 10 है तो मेथड अलग. रूल 1/x into log to the base 10 e, ये है इसका डेरिवेटिव. किसका? log to the base 10. ये है इसका डेरिवेटिव. तो x विल गेट कैंसल प्लस. ठीक है,
अब किसको कांस्टेंट रखेंगे, log to the base 10 को कांस्टेंट रखेंगे, x का डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा 1. सो व्हाट द फॉर्मूला विल बी log to the base 10 into e of e plus log to the base 10 x. This is clear. ठीक है, once it is clear, अब we are going to find out the value of 0, putting 1 and so on. ठीक, so just put the value of x equal to 0 in the given equation. The equation will be minus 1.2. Put x equal to 1 in the given equation. Again the value will be minus 1.2. Put x equal to 2 in the given equation. So 2 into log to the base 10 of 2 minus 1.2. जब भी आप लॉगरिथम यूज करोगे log to the base 10 log जो होगा वो कैलकुलेटर में कॉमन लॉगरिथम यूज करना, ठीक है. आंसर विल बी minus 0.5979. Put x equal to 3, the answer will be C 2313. So ये सबसे आखिरी पॉजिटिव निगेटिव और सबसे पहला पॉजिटिव. So root lies between 2 and 3. 2 and 3. Understood? So just आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो. Let's do 2. ठीक है, आप 2 ले लो. 2 लेने के बाद इटरेशन 1 n इक्वल टू 0 x1 x0 प्लस f माइनस f ऑफ x0 f डैश ऑफ x0 एंड सो ऑन. अब यही कैलकुलेशन आपको करना है. अंडरस्टूड? तो मैं ये प्रॉब्लम आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, कैलकुलेशन ही करना है. दैट इज नॉट अ डिफरेंट थिंग. आपको वैल्यू पुटअप करनी है और आंसर निकालना है. कैलकुलेटर पे काम है. सो थिंक इट इन दिस वे. आपको ये सॉल्व करना है. ठीक. अब मैं जा रहा हूं आगे फॉल्स पोजीशन मेथड के ऊपर. ठीक है, चाहे तो उसको पॉज करके क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा. ठीक है, फॉल्स पोजीशन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, ये बड़ी आसान मेथड है. ग्रेजुअली ये कहता है कि धीरे धीरे से इसको क्या करो, सॉल्व करो. अब ये ग्रेजुअली सॉल्व करो यानी कैसा सॉल्व करो, इसका सिंपल फार्मूला ध्यान से देखना. वो सिंपल फार्मूला क्या है, C इज इक्वल टू a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए. क्लियर कर रहा हूँ, a into f of b minus b into f of a divided by f of b minus f of a. What is this f of b minus f of? Very easy. Listen to me very carefully. C is equal to a into f of b minus b into f of a. क्या करना है, a मतलब इंटरवल का पहला पॉइंट, b मतलब इंटरवल का दूसरा पॉइंट, c मतलब वो पॉइंट जहां पर हम ये सिचुएशन देखने वाले हैं, f of b मतलब वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट a एंड बी, एफ ऑफ ए एंड बी. सिस्टम खई, आपको वही तो वही करना है, उसी सिस्टम से उसको आपको फार्मूला निकालना है. फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये लंबा चलेगा, इटरेशंस लंबे चलेंगे. अंडरस्टूड? और ये आगे 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 बढ़ता जाएगा. न्यूटन रैप्सन जैसा विद इन फ्रैक्शन इसका सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है. ठीक, 4 या 5 प्रॉब्लम में 2 3 4 में हमें इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा. हमें शायद से 5 6 7 8 9 10 तक वैल्यूज लेनी पड़े. ठीक है, चलो अब देखो इक्वेशन क्या बोल रहा है. द गिवन इक्वेशन इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0 लाइन बिटवीन 1 एंड 2. यानी उन्होंने बोल दिया है कि 1 एंड 2 के बीच में ही देखो. अब हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. अंडरस्टूड? उन्होंने कह दिया है 1 एंड 2 के बीच में देखो, तो हम 1 एंड 2 के ही बीच में देखेंगे. लेट a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2. ठीक है, f ऑफ a इक्वल टू माइनस 4 f ऑफ b इक्वल टू 3. फिनिश. यही हमारी चीजें थी जो हमें चाहिए थी. यहां से प्रॉब्लम शुरू. ये हम देखेंगे नहीं. अगर ये ना देते, कहा ये ना देते तो हम ये पहले से सॉल्व करते. अंडरस्टूड? सो व्हाट इज द फार्मूला, न्यू एक्स इक्वल टू या सी इक्वल टू, हम इसको एक्स भी कह सकते हैं क्योंकि एक्स कहेंगे बाद में x1 कंसीडर करेंगे, बाद में x2 कंसीडर करेंगे एंड सो ऑन. सो द जनरल फार्मूला इज a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ. अंडरस्टूड? लिख दिया. अब a वैल्यू पता है, b वैल्यू पता है, f ऑफ a पता है, f ऑफ b पता है. x1 इक्वल टू पुट अप ऑल दोज वैल्यूज. आंसर विल बी 3 plus 8 divided by 7. आंसर विल बी 11 by 7. आंसर विल बी 1.5. क्लियर हुआ? 1.5. वंस आंसर इज 1.571. पुट, ध्यान से सुनना, x इक्वल टू x1. ध्यान से देखना, अभी ये क्या हुआ, 1.5 मिला. क्लियर हुआ? f ऑफ 1.5 की वैल्यू क्या है,
समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? इसकी वैल्यू क्या है एफ ऑफ में? क्लियर हो रहा है? ध्यान से देखना, एफ ऑफ x1 निकालो। x1 निकाले तो यहाँ पर जहां जहां 1.7 है ना पुट किया, आंसर क्या मिला? आंसर मिला, ध्यान से देखना, ये है आंसर एफ ऑफ x1 -1.368, -1.368। अब देखो क्या हुआ, 1.368, ठीक। यानी अब देखना जरा सा, ये है हमारा सॉल्यूशन जिसकी तलाश में हम घूम रहे हैं। यहाँ पर निगेटिव वैल्यूज है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज है, ठीक है। यानी +3 यहाँ पर है, -4 यहाँ पर है। अब मुझे सॉल्यूशन मिला 1.575, ठीक है। बच्चों ये जीरो नहीं है, हाँ, ये एफ ऑफ जीरो है, ये याद रखना। हाँ, समझ में आ रहा है ना? ये दिस इज नॉट अ जीरो, नंबर लाइन वाला जीरो नहीं है, दिस इज एफ ऑफ जीरो। मुझे अर्जेंट वाली वैल्यू मिली थी, रूट लाइज बिटवीन कहाँ कहाँ, रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। 1 के लिए निगेटिव वैल्यू मिली, 2 के लिए पॉजिटिव वैल्यू मिली, ठीक है। अब नई वैल्यू कौन सी मिली? -1.368। -1.368 कहां पर लाई कर रही है? समझे ना, कहां पर लाई कर रही है? -1.368 लाई कर रही है यहां पर कहीं तो, बराबर है। और वो जब मैं पुट करूं तो वो -1.368 मतलब किसके नजदीक जा रहा है? जीरो के नजदीक जा रहा है। दैट मीन्स अब मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा, किसको कंसिडर नहीं करूंगा? 1 को कंसिडर नहीं करूंगा। अब मैं कहूंगा माई रूट लाइज बिटवीन 1.571 एंड एफ ऑफ बी, यानी माई रूट लाइज बिटवीन 1.571, एक मिनट, 1.571 एंड 2, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। मैं फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये नंबर लाइन वाली नंबर लाइन नहीं है, ये वो सॉल्यूशन लाइन है। ये है जीरो, एफ ऑफ जीरो, समझो करो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। ये है 2, ये है 1। जब मैंने 1 और 2 रखा तो एक वैल्यू मिली निगेटिव, एक वैल्यू मिली पॉजिटिव। मैंने कहा रूट लाइज बिटवीन 1 निगेटिव एंड 1 पॉजिटिव। ये सबसे बेटर निगेटिव मिला था, इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया था, समझे ना, इसलिए रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। जब मुझे नई वैल्यू मिली 1.57, 1.1571, तो उसका आंसर आया -1.368, विच इज बेटर देन 4 के लिए क्या मिला था? -4, which was better than -4, so we have cut -4, that means we have cut 1 and we have considered 1.571, और हम कह रहे हैं रूट लाइज बिटवीन इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रूट है, समझे। अगर ये पॉजिटिव को रिप्लेस करता तो हम 2 को हटाते, अगर ये निगेटिव को रिप्लेस करता तो हम 1 को हटाते। समझ में आ रहा है ना, जिसको रिप्लेस करेगा उसको। सो रूट लाइज बिटवीन कहाँ कहाँ, 2 एंड 1.571। अब 2 के लिए एफ ऑफ बी हमें पता है, 1 के लिए 1.571, उसका आंसर भी हमने अभी फाइंड आउट किया, -1.368। Substituting the value in the given equation, x2 equal to 1.571 into 3 minus 2 into 1.368, वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद आंसर मिला x2 इक्वल टू, ध्यान से देखना, 1.705। अब 1.705 ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे f ऑफ x2, इसका आंसर मिला -0, क्लियर कर रहा हूं बच्चों जरा सा, इसका आंसर मिला -0.252, अंडरस्टूड। वंस इट इज -0.252,
which is much more better than 1.368. That means अब मैं इस a को हटा दूंगा और मैं कहूंगा कि रूट लाइज बिटवीन 1.705 एंड 2. समझ में आ रहा है? रूट लाइज बिटवीन 1.7, देखो यहां पर रूट लाइज बिटवीन 1.705 एंड 2. अगर बच्चों यहां पर प्लस आता तो मैं किसको हटाता? मैं 2 को हटाता. क्लियर हुआ इतना? अनफॉर्चुनेटली वो प्लस नहीं आया, इसलिए अगेन सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन इक्वेशन. Understand? Again substituting the value in the given equation, x3 equal to f of a, f of जो अपना है वो f of a into 3 into b minus b into f of जो भी हमारा जो था वो. अंडरस्टूड? अब इसका मतलब क्या है? इसका क्लियर कट मतलब, मैं थोड़ा सा फॉर्मूला मैंने गलत बोल दिया होगा शायद से. ठीक है, वो फॉर्मूला ऐसा था b इंटू, एक मिनट, जस्ट मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा होपफुली यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक ना हुआ होगा. हाँ करेक्ट है, प्रिंट मिस्टेक नहीं है. यहाँ पर वो फॉर्मूला a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ. ठीक. हाँ, वैल्यू किसकी? a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. इसका सोल्यूशन है 1.728. अब 1.728 मैंने पुट किया इक्वेशन में, तो वो क्या मिला? 0.0038. that means it is more reaching towards 0. तो we can stop here, और what we can do, again हम एक इटरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं. अंडरस्टूड? तो अगेन एक इटरेशन कंटिन्यू करेंगे, तो अब ये 1.705 की जगह 1.728 लिखेंगे एंड अगेन कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो ऐसा इटरेशन कंटिन्यू करते रहना है. जिसको रिप्लेस करना है उसको आइडेंटिफाई करके रिप्लेस करना है. इतना सिंपल याद रखो. अंडरस्टूड? ठीक है, अब ये भी प्रॉब्लम उसी के जैसा है. उसी के जैसा कहने का मतलब मेरा ये है कि हम अगर सॉल्व करेंगे तो हम सेम प्रॉब्लम मिलेगा हमें. मैं ट्राई करता हूं, देख लेना जरा सा इसको शांति से. ये स्क्रीन पे रहने दूंगा मैं 2 मिनट के लिए. पॉज करके लिख लेना इसको, इसे भी पॉज करके लिख लेना. अब ये हम देखेंगे cos एक्स, cos x इक्वल टू एक्स इंटू ई का पावर एक्स, अलग वाला प्रॉब्लम है. ठीक है, हाँ ठीक. अब देखो जरा सा कि जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आए साइबर कॉस वाला इसमें, तो हम सीधा सीधा कौन सा रेडियन मोड यूज करेंगे. तो ये बात ख्याल में रखना बच्चों, रेडियन मोड ही यूज करना. ठीक. अब जरा ध्यान से देखना, 2 मिनट में प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू ई का पावर एक्स. पुट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1. एक्स इक्वल टू 0 पुट किया, आंसर मिला 1. एक्स इक्वल टू 1 पुट किया, आंसर मिला -2. विषय हो गया हमारा क्लियर. रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1. तो इसको कहा a, इसको कहा b. ये बना एफ ऑफ a, ये बना एफ ऑफ b. अंडरस्टूड? अब 1 अपॉन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी अपने सामने आ गया. सीधा सीधा x इक्वल टू फार्मूला a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. वैल्यूज लिखनी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है. कैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है? बड़ा आसान है बच्चों. ये a लिखो, एफ ऑफ ए लिखो, फार्मूला बड़ा आसान है. b लिखो, एफ ऑफ बी लिखो, और क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. अंडरस्टूड? क्या कह रहा हूं समझ में आया ना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो सीधा सीधा. इसमें भी वही करना है. हमें प्रॉब्लम बड़ा आसान ऐसा करना है कि ए और बी, ए एफ ऑफ ए, बी एफ ऑफ बी, इसकी वैल्यू सिर्फ चेंज करनी है. जो निगेटिव आया निगेटिव में चला जाएगा, जो पॉजिटिव आया पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा. इतनी आसानी से बात करनी है. हाँ, आप पॉजिटिव को कौन सा पॉजिटिव रिप्लेस करेगा वो भी ख्याल रखना. पॉजिटिव को
बड़ा पॉजिटिव आया तो वो हमारे आउट ऑफ कवरेज एरिया होगा, छोटा पॉजिटिव आया तो रिप्लेस करना है, बड़ा पॉजिटिव आया तो रिप्लेस नहीं करना है। इतनी क्लियर रख लेना दिमाग में बात, ठीक है। हाँ, आगे जा रहा हूं, तो ध्यान से देखो प्रॉब्लम कैसा है। अब प्रॉब्लम मिला मुझे, रूट लाइज बिटवीन किसके किसके बीच में, 0 and 1। अब ये रूट एक बार 0 and 1 के बीच में रूट मिल गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा सीधा उस वैल्यूज को शिफ्ट करेंगे और वैल्यूज पुट अप करेंगे। ए की वैल्यू 0, एफ ऑफ ई की वैल्यू 1, 2.7 माइनस 2.1779 और एफ ऑफ ए की वैल्यू 1। हो गया क्लियर इतना। अब इतना क्लियर हो गया हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, किसका किसके साथ, 0 का 2.17 के साथ, 1 का 1 के साथ, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2.1779 माइनस 1। तो फाइनल आंसर वुड बी 0.31465। अब x1 इक्वल टू 0.31465 बना, उसकी वैल्यू निकालो, उसकी वैल्यू निकाली तो वो आई 0.51, जस्ट ए मिनट, उसकी वैल्यू आई 0.5197। अब टेल मी इज इट पॉजिटिव और निगेटिव, इट इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये इसको रिप्लेस करेगी, यानी अब जीरो नहीं होगा। रूट लाइज बिटवीन 0.31467 and 1। सी, root lies between 0.31467 and 1. So therefore x2 is equal to 0.3146, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आ गया। फाइनल आंसर क्या मिला, 0.44673, 0.44673। पुट अगेन f of x2, आंसर मिला 0.20420365। अगेन पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव तो प्रीवियस पॉजिटिव से और छोटा मिला, इसका मतलब अब ये हट जाएगा और ये अंदर आ जाएगा। रूट लाइज बिटवीन, ध्यान से देखना, सो रूट लाइज बिटवीन 0.44673 एंड b एज इट इज, b एंड f of b एज इट इज, ठीक है। अब इतना क्लियर हुआ तो रूट लाइज बिटवीन होने के बाद वैल्यूज फिर से पुटअप कर दी, वैल्यूज फिर से पुटअप करने के बाद आंसर मिला x3 इक्वल टू 0.49402। अब ये 49402 आया और 49402 आने के बाद फिर से आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मैं ये जो बोल रहा हूं ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, ये x3 तक निकाला है, अब आपको x4, x5, x6, x7, x8, x9 इन सबका कैलकुलेशन करना है और उसके साथ आपको पता चलेगा कि 517 दैट मीन्स x8 एंड x9 आर नियर अबाउट सेम, इसीलिए रूट एग्जैक्ट रूट इज 0.5177। क्लियर हुआ इतना। सो सिंपल चीज है, जो निगेटिव है उसको निगेटिव, अगर आया आंसर तो निगेटिव को उड़ाना है, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव को उड़ाना है, एज सिंपल एज इट इज। क्लियर हुआ इतना, इतने पर ही कॉन्सेंट्रेट करो, नथिंग मोर लाइक दैट, अंडरस्टूड, ठीक है। इतना हो गया। अब ये प्रॉब्लम आपकी प्रैक्टिस के लिए, कौन सा, नेक्स्ट वाला, ठीक। ये हम ऑलरेडी न्यूटन रैप्सन में कर चुके हैं, वंस मोर आप इसमें से करो। तो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर ओनली। थैंक यू, थैंक्स लॉट। नेक्स्ट लेक्चर में अगले बार देखेंगे आगे वाली मेथड्स, ठीक है।